हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश हॉर्नबिल क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस रिटन बाय ए.आर. विलियम्स के बारे में अध्ययन कराएंगे। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about him, his life and death, and provides precise data for an accurate forensic रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फ्रेश। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, वह एक किशोर था जब वह मरा। उस परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी, उसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर राज किया था। वह सोने से लदा हुआ शांति से लेटा दिया था और अंत में भुला दिया गया था। 1922 में उसकी खोज से लेकर आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा है कि उसे क्या हुआ होगा। सबसे अधिक कत्ल की संभावना के साथ अब अपनी कब्र को छोड़ते हुए तुत सीटी स्कैन से गुजर चुका है, जो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में कई संदेश देता है और किशोर फ़राओं के सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए सही आंकड़े उपलब्ध करवाता है। Next stanza. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on January 5, 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical majesty of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, एक गुस्साई हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर दिया जब राजा तुत को राजाओं की घाटी नामक प्राचीन कब्रिस्तान में उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था। काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सारे दिन उड़ते रहे थे और अब भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। संसार की सबसे प्रिंसी मम्मी सर के बल उस सीटी स्कैनर के अंदर गई जो यहाँ इस जवान राजा जो 3,300 वर्ष पहले मर गया था कि लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय रहस्यों की तहकीकात करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट स्टैंजा है, All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the scrambled rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's guided face. The most striking
feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely timely death in his late teen, or wondering with his silver if the heroic course, curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. हिंदी। पूरी दोपहर को प्रायः संसार भर में आने वाले पर्यटकों की भीड़ सिकुड़े हुए पत्थर को तराश कर बनाए हुए मकबरे पर, जो 26 फुट गहरा था, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जमा हो गई थी। वे दफनगाह की दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखते थे और तुत ने सोना चढ़े हुए चेहरे को झांकते थे, जो उसके ताबूत के ढक्कन पर बना हुआ था और जो उसकी मम्मी का सबसे आकर्षित करने वाला हिस्सा था। कुछ पर्यटक धीमी आवाज़ में गाइड बुक में से पढ़ते थे, अन्य चुपचाप खड़े थे, शायद तुत की असामयिक मौत के बारे में सोचते हुए या भय के साथ हैरानी करते हुए कि क्या फ़राओं का अभिशाप उन लोगों के लिए मौत या बदकिस्मती जो उसको परेशान करते थे वास्तव में सच था। नेक्स्ट स्टैंजा। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its content through hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the French legend. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also worried with everyday things he had want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wines. हिंदी। जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्टस सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ ने, जैसे ही वह एक लंबी दृष्टि डालने के लिए उनके फ़राओं के शरीर पर झुका, कहा, जो कुछ कार्टर ने 1920 के दशक में किया उसके कारण मम्मी बहुत बुरी हालत में है। कार्टर हॉवर्ड कार्टर अर्थात ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था, जिसने वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद तुत के मकबरे को खोजा था। इसके अंदर की वस्तुएं यद्यपि जल्दबाजी में पुराने समय में लूटी गई थीं, पर हैरानी की बात है कि वे अपने पूर्ण रूप में थीं। वे वस्तुएं आज तक मिली सबसे मूल्यवान शाही वस्तुओं का संग्रह थीं और वे फ़राओं की कहानी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। सोने के खनखनाते हुए गहने उनकी हमेशा बने रहने वाली चमक पुनर्जन्म की गारंटी थी। खोज के समय सनसनी थे और अब भी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, परंतु तुत को भी रोज़ाना काम आने वाली चीज़ों जिनकी उसे मौत के बाद ज़रूरत पड़ेगी के साथ दफनाया गया था। बोर्ड गेम्स, एक कांस्य धातु का उस्तरा, कपड़े के अंतः वस्त्र, भोजन के डिब्बे और शराब। नेक्स्ट स्टेंजा।
After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. The ritual regime had hardened, commenting Tut to the bottom of a solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. हिंदी, महीनों की फ़राओं की कब्र के खजाने की सावधानीपूर्वक की गई जांच के बाद कार्टर ने उसके फ़राओं के एक के अंदर दूसरा और फिर तीसरा ताबूत जांच किए। पहला ताबूत खोलते हुए उन्होंने एक कफन पाया जो सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सेलरी, एक प्रकार की सब्जी, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर से सजा हुआ था। ये सब इस बात के सबूत थे कि यह 100 मार्च अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। यद्यपि जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया। पारस पर एक गोंद सूख चुका था जिसने तुत को ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ लिया था। किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उनको अलग नहीं कर सकता था। कार्टर ने बाद में लिखा क्या किया जाना था। नेक्स्ट स्टैंजा। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू loosen the regime. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 49 degrees Fahrenheit. Nothing budged, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. हिंदी, इस दूरस्थ दक्षिण मिस्र को सूर हथौड़े की तरह पीट सकता था और कार्टर ने इसका प्रयोग गोंद को ढीला करने के लिए किया। कुछ घंटे के लिए उसने मम्मी को बाहर जलती हुई धूप में रखा जिसने उसको मम्मी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। कुछ भी नहीं हिला। उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ विवरण दिया। सख्त पड़ चुके पदार्थ की इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, अंगों के नीचे से छेनी से छीलकर हटाना पड़ा। नेक्स्ट स्टैंजा। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could